Good morning, class 12 students. Today we will do in inverse trigonometric functions some equations related to inverse trigonometric functions. So in equation, what you have to do, you just have to solve like trigonometric identities, but then you have to understand that these values are only for some values of the variables they are true. So let us see some equations. Okay, equations देखते हैं आज थोड़े solve करते हैं. तो पहला इक्वेशन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका एक्सरसाइज 2.1 का. क्वेश्चन नंबर 21 इज दिस: sin inverse 1 upon root 5 plus cot inverse x is equal to pi by 4. Okay, so this is the limited value for x, this is 2. So this is an equation, solve for x, just like you have a algebraic equation, trigonometric equation. This is inverse trigonometric equation. Okay, तो inverse trigonometric equation में क्या करते हैं, sin inverse 1 by root 5 plus cot inverse x है. So basically if you can convert both of them into tan, because tan is the easiest identity to learn, तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर दो. तो look at this first, 1 by root 5 1 और यहाँ पर root 5. तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यह 2 आ गया. इजी है. तो हम इसको इस एंगल को लिखेंगे, जो भी एंगल है थीटा, राइट. सो दिस थीटा बिकम्स tan इनवर्स 1 by 2 plus cot inverse can be written as 1 upon x, tan inverse 1 upon x is equal to pi by 4. And now we can apply tan inverse a plus tan inverse b. क्या होता है tan inverse a और tan inverse b? tan inverse a plus tan inverse b होता है tan inverse a plus b upon 1 minus ab. तो वो आइडेंटिटी लगाते हैं. यहाँ पे क्या आएगा, tan inverse हाफ प्लस 1 by x अपॉन 1 minus हाफ इंटू 1 by x इज इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2x एलसीएम ले लें, 2x एलसीएम ले तो क्या मिलता है tan इनवर्स 2x. ठीक है. और यहाँ पे मिलेगा आपको x प्लस 2 and the denominator 2x is the LCM. यहाँ मिलेगा 2x minus 1. We can cancel 2x by 2x assuming that x is not 0. pi by 4 और उधर जाकर के हो जाएगा tan pi by 4 और tan pi by 4 क्या होता है 1. तो आपको एक इक्वेशन मिल गया अलजेब्रा में. अलजेब्रिक इक्वेशन क्या मिलेगा, अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगा आपको x plus 2 अपॉन 2x minus 1 is equal to 1. क्यों? क्योंकि tan pi by 4 क्या होता है 1. ना उधर जाके क्या होता है x plus 2 is equal to 2x minus 1. So we can solve this 2 plus 1 3 and is equal to x. So x is equal to 3. That is the only answer. And you can check the original equation, अगर आप इसमें डालते हो तो ये आएगा tan inverse 1 upon 2 और ये 1 upon 3. तो 1 upon 3 डाल करके आप देख लो, you will get the same answer. That is, we will get tan inverse of 1 and tan inverse of 1 is pi by 4. So this is how you solve a simple equation. अच्छा, और equation देखते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोग का. तो क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 22 इज लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 22, 3 tan इनवर्स 1 by 2 plus root 3 minus tan इनवर्स 1 by x is equal to tan inverse 1 by 3. Something like this you are getting. Tan 3 of tan inverse 1 by 2 plus root 3 minus tan inverse 1 by x is equal to tan inverse 1 by 3. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इस tan inverse x को मैं उधर ले जाता हूँ and let's make it positive. So you'll get 3 times tan inverse 1 plus 2 by root 3 is equal to tan inverse 1 by x plus tan inverse 1 by 3. ठीक है. Now another thing you will notice that this is a known angle. If कौन सा angle है tan inverse 1 by 1 upon 2 plus root 3, this you should know and we will discuss on this also कि ये कौन सा angle है. परंतु पहले अब इसको solve करने की कोशिश करते हैं. Let us see what happens here. Because 3 tan inverse x की आइडेंटिटी तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. बताया था आपको 3 tan inverse x की आइडेंटिटी क्या होती है. 3 tan inverse x होता है tan inverse, ठीक है. If you remember something like this, 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, something like that. Okay, you can verify. तो यहाँ पर ये x की वैल्यू डालेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट स्टिल वी कैन ट्राई. लेट अस सी कैसे सॉल्व होगा ये. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी क्या होती है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. तो दैट इज 1 प्लस x प्लस 1 by 3, 1 प्लस x और 1 by 3. तो इसको आप सॉल्व कर लो, 3x एलसीएम ले लो, 3 प्लस x ऊपर आ जाएगा
tan इनवर्स इधर बन जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 3x और 3x माइनस 1 अपॉन 3x, तो वी कैन कैंसिल 3x 3x, सो विल गेट दिस। ओके, यहाँ पर अब आपको पूरा आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। 3 ऑफ tan, तो एक काम करते हैं, इसको आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। 3 tan इनवर्स 2 प्लस रूट 3, अगर आप ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 माइनस रूट 3 से, तो यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होता है 1, तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 3 tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3, ठीक है। We can break this into numerator. This is equal to, now if you want to remove this 3 tan inverse, you will have to put the identity, तो आप आइडेंटिटी लगा दो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 3x 3 into 2 minus root 3 minus x cube. Now how will you solve this? X cube, okay, on, and I'll tell you another method, but let me just write this method. 3 2 minus root 3 upon whole square. One method is that you square this and solve this. Another method is, if you can find this angle, what is 2 minus tan inverse of 2 minus root 3, तो आपको ऐसे देखना है कि किसका tan थीटा 2 minus root 3 होता है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि क्या हो सकता है, ये tan 15 डिग्री जो होता है, tan of 15 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 45 माइनस माइनस 30, और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan a यानी tan 45 क्या होता है 1 माइनस tan 30, अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, तो ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो अब ध्यान से देखो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, और अगर आप इसको रेशनलाइज कर देते हैं, दैट इज रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, दैट इज 4 माइनस 2 रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, मतलब ये जो एंगल है ये 15 डिग्री है। तो बेसिकली 3 tan इनवर्स ये जो एंगल आया हमारे पास ये 15 डिग्री है, प्लस 15 डिग्री, जब दिस इज 15 डिग्री 3 into 15 इज व्हाट, 3 into 15 इज व्हाट 45, तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, ये वापस वही मिल रहा है जो ओरिजिनल था, दिस एंगल इज 45 डिग्री। दिमाग लगा लेना जो यहाँ पे रिपीट किया आपने, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी अगेन व्हाट आई सेड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल आया ये 15 आया और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 15 into 3 45, तो बेसिकली 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 है। तो इसको अपन लिखा tan इनवर्स, इधर देखो 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1, ऐसे कुछ मिल जाएगा आपको 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली आप इधर लेके जाओ tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 हो गया 1, तो फिर से अपने को इक्वेशन मिल गया सिंपल सा 3 प्लस एक्स अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और उधर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ठीक है। और 3 प्लस 1 4 होता है, 3 प्लस 1 4 और 3x माइनस x 2x, तो 4 बाई x इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, ठीक है। 3 प्लस 2 3 प्लस 6, हाँ, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 इज द आंसर फॉर दिस इक्वेशन। तो सी बिना इसको हमने 3 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगाई सॉल्व किया, just by knowing that tan inverse 2 minus root 3 is 15 degrees, so you can also apply your brain like this and solve the questions in trigonometric equations, ठीक है। हाँ, tan inverse में फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू भी आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो दिस could have been say but in that case if I write tan of say 3 pi by 4 or pi plus pi by 4, okay, because 5 pi by 4 is also same, but tan इनवर्स की रेंज ही ये होती है, ठीक है। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि अगर ये 5 pi by 4 होगा तो क्या आंसर मिलेगा, मेरे ख्याल से x इक्वल टू 2 ही मिलेगा, यू कैन चेक, ओके। बट एक चीज़ का ध्यान रखो tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई बाई 4 ही लिखा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25 ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 25 अगेन एन इक्वेशन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जो है वो 2 पाई बाई 3 दे रखा है, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 दे रखा है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम हियर। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास साइन इनवर्स y है
और यहाँ पे cos इनवर्स y है. So how can you solve this equation so that you get some meaningful answer for x and y? कैसे solve कर सकते हो आप इसको? cos इनवर्स x और अगर आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ लेते हैं, इनको आप ऐड कर लीजिए एक बार, लेट्स सी क्या होता है. तो इनको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x. ठीक है, तो वो तो आ जाएगा पाई बाई 2. और यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा मेरे ख्याल से इक्वेशन में, वो आप देख लेना, क्योंकि देखो इसको ऐड कर रहे हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो पाई बाई 2 होता है, माइनस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये भी क्या होता है पाई बाई 2, है ना. तो इसको ऐड करेंगे तो और इधर क्या मिल रहा है 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3. तो बेसिकली आपको क्या मिला 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 3 यानी पाई. नाउ पाई एंड दिस pi by 2 minus pi by 2, so they are not satisfying this equation. This is 0 and this is pi. फिर से ऐड कर लेते हैं. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है pi by 2, माइनस sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y क्या होता है pi by 2. pi by 2 माइनस pi by 2 क्या होता है 0. 0 is not equal to pi. So there is some change in this. So you can just understand कि इसमें क्या चेंज होगा, वो आप खुद एक बार मैनिपुलेट करके देख लेना. इसमें कुछ करेक्शन है क्वेश्चन में, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. क्या करेक्शन होगा, लेट अस ट्राई टू सी. अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसे करते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो एक को पॉजिटिव बना देते हैं और एक को नेगेटिव, देन यू कैन परहैप्स सी कि क्या चेंज आएगा. सपोज करो अपन ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली अब आपके पास ये भी पॉजिटिव बना दो. ठीक है, नाउ इज इट ट्रू बिकॉज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज 2 पाई बाई 3. और अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लिख रहे हैं, नाउ कैन यू राइट इफ बोथ आर पॉजिटिव हियर. Now this is adding to sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 and sin inverse y plus cos inverse y is also pi by 2 and pi by 2 plus pi by 2 and here 3 pi by 3 by 3. So this is okay working. तो अब इसको चेंज करते हैं. इसको cos में कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम cos में लिख सकते हैं pi by 2 minus cos inverse x, और इसको लिख सकते हैं pi by 2 minus cos inverse y 2 pi by 3. ठीक है, तो बेसिकली ये तो सेम ही इक्वेशन मिल जाएगा. दिस विल गिव अस द सेम इक्वेशन एंड दिस विल नॉट गिव यू एनी सॉल्यूशन. सो परहैप्स आपको और सोचना पड़ेगा. सपोज करो एक को प्लस ले लेते हैं और एक को माइनस. ओके, एंड देन इफ यू सी कैन वी गेट सम इक्वेशन और सम वैल्यू ऑफ x and y for this is true, for which this is true. ओके, सो यू विल हैव टू अगेन थिंक कि कैसे ये ट्रू हो सकता है. देखते हैं, यहाँ पे अपन चेंज करते हैं इसको. तो इसको अपन ने लिखा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इसको लिखा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई और इसको 2 पाई बाई 3. अब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 तो हो गया आपका पाई. पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 आ गया. जब पाई बाई 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस कॉस इनवर्स वाई और एक तरफ दे रखा है पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई. अगर ये ऐसा इक्वेशन होता है तो फिर ये हो जाएगा कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 कॉस इनवर्स एक्स बचेगा और ये ऐड करोगे तब आपको पता मिलेगा पाई बाई 3 प्लस सपोज करो 2 पाई बाई 3 मिला और वापस कट के आपके पास आ गया 2 कॉस इनवर्स एक्स. 2 से 2 काट दिया. ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स मिला यहाँ पे. ठीक है ना, तो बेसिकली क्या मिला कॉस पाई बाई 3 क्या होता है कॉस 60 डिग्री यानी हाफ. तो x इज इक्वल टू हाफ हो सकता है. इफ x इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y must be then pi by 2 because then cos inverse pi by 2 is 0, so we'll get 0 0 here, right? So y could be pi by x could be what? X could be half and y could be, because this has to be 0, so cos inverse x you are getting as what? Half. तो y क्या मिलेगा आपको? y के लिए cos इनवर्स y को मैं लिख देता हूँ 0, cos इनवर्स y को 0 लिख देता हूँ. तो y क्या है cos 0. cos 0 क्या होता है 1 होता है. ठीक है, तो y 1 हो सकता है. अभी चेक करते हैं एक बार. साइन इनवर्स लेट्स राइट लाइक दिस, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है. तो साइन इनवर्स x क्या आया हाफ. तो साइन इनवर्स हाफ क्या होता है 30 डिग्री यानी पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स y यानी साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, तो 90 प्लस दिस इफ यू सॉल्व 2 पाई बाई 3 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं cos इनवर्स x, तो यानी कि ये आया cos इनवर्स हाफ. cos इनवर्स हाफ कितना होता है
π/3 माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स 1 कितना होता है 0, तो ये भी मैच हो गया, यानी मतलब हमने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया और आंसर भी निकाल लिया। तो वी आर गेटिंग x एज हाफ एंड y एज 1, बट ये ध्यान रखो कि पहले क्वेश्चन में प्लस किया और नीचे माइनस किया है, देन वी हैव गॉट दिस आंसर। ओके, सो गुड क्वेश्चन टू डिस्कस, अगर आप इतना समझ सकते हो तो अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 11th क्वेश्चन है उसको देखो आप, इसमें क्या मिला आपको 4, ये भी एक इक्वेशन है, सॉल्व दिस 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अब आप देखो, एक तो रूल होता है आपके पास sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2, वो रूल लगाओ सीधा आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस sin इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल टू पाई। तो बेसिकली ये मतलब 4 sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x 3 आ जाएगा, ये तो 3 आया, 3 sin इनवर्स x और पाई माइनस π/2 क्या होता है π/2, तो sin इनवर्स x कितना आ गया π/6 और x कितना आ गया sin 30 कितना होता है हाफ। तो बेसिकली ये सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 12th क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/2 प्लस sin इनवर्स 1/√3, इसका वैल्यू निकालना है, cos π/2 प्लस sin इनवर्स 1/√3। अब इसको आप एंगल मान लो थीटा, तो π/2 प्लस थीटा कितना होता है cos π/2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin इनवर्स 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से माइनस sin, क्योंकि ये cos इसमें चेंज हो गया आपका, ये मैंने ऐसे लिखा है cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैंने लिखा माइनस साइन थीटा। अब थीटा क्या था अपने पास साइन इनवर्स 1/3, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 में बेसिकली आपको मिलेगा -1/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं एक और एक्स्ट्रा करा देता हूँ, सपोज करो यहाँ पर ऐसे होता है cos π/2 प्लस cos इनवर्स 1/3, ठीक है, तो इस एंगल को आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं माइनस साइन cos इनवर्स 1/3। तो अब आपको cos इनवर्स को 1/3 में पहले इसको साइन इनवर्स में ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ट्रायंगल बना लेना, यहाँ लिख लेना 1, ठीक है, यहाँ 1 लिख लोगे आप और यहाँ पे लिख लोगे आप, सॉरी यहाँ 1 लिखोगे यहाँ 3 लिखोगे, तो ये आएगा 9 माइनस 1 क्या होता है 8, √8 आ जाएगा, 2√2 मान लो इसको, तो बेसिकली साइन इनवर्स में बना 2√2 3, तो आंसर बनेगा माइनस साइन इनवर्स 2√2/3, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये आपको मिलेगा -2√2/3। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करिए, ठीक है, मिसलेनियस की भी ट्राई करिए, एंड लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू। सो कंप्लीट योर वर्क एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।